Thousand acres of land. Before 1988, see the rainwater from the mountain area should come down and go to the sea through the nallas. Natural nallas were there, outlets were there. Same thing in the green zone. Now the builders have blocked all the nallas. So water is pushed in the western side. Locals were not happy. Thousands of Adivasis, along with renowned activists like Medha Patkar, Chandrasekhar Prabhu, Father Francis de Brito, spilled onto the streets to protest rapid urbanization. These protests didn't go in vain. The government gave an FSI of 0.33 to ensure no big builder entered green zone of the region. But that didn't deter builders turning into politicians and the builder mafia in the region gaining strength. Urban planners cite unauthorized construction led to drainage channels getting blocked and mangroves getting wiped out. This meant the chances of Now you are watching this video. Builder-politician nexus contributed to the unplanned growth. The then Chief Minister Sharad Pawar was also embroiled in a land scam controversy. This period also saw the rise of Thakur brothers, who then turned politicians. The politician, the mafia, that's the underworld, section of the bureaucracy, and builders. They are hand in glove. In fact, there are no watertight compartments. The politician is the underworld, is the builder as well. As construction activities continued, the population which couldn't afford to live in the expensive Bombay began moving to Vasai, Nalasopara and Virar. But as the population grew, adequate infrastructure facilities didn't. And for those who raised their voice in this environment were struck down. Navleen Kumar, a human rights activist of Maharashtra, was murdered in 2002 for speaking up against the builder mafia and rapid urbanization. Cut to 2018 and this could well be the beginning of problems for people of Vasai Virar, leaving only two options. One, to strike down the MMRDA plan that could lead to more unplanned growth in the region, or then two, to control the mafia, both seemingly difficult. Amita Balachandra for Mirror Now. Another clipping of the video I want to show. See this. See this video. What can you see here? The water flowing. Please notice. See how the bridge is going down slowly and slowly. The bridge is going down. Watch it carefully. See the location of the bridge. Completely collapsed. The bridge has collapsed. Can you see the people there? So many people standing out away from the bridge. The most dangerous situation during floods or heavy rain. The most dangerous situation. The bridge has collapsed. It was during 2015 floods in Chennai. Video was recorded, so I am able to show you all. ऐसी कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग रहती है तो हम बता सकते हैं. आगे की भी रिकॉर्डिंग्स कुछ रहेगी तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये देखो यहाँ पर ज़मीन खिसकी, बाढ़ आई और
बाढ़ का पानी किस तरह से पूरे गांव को बहा कर ले जा रहा है। जो जो रास्ते में आता है बाढ़ का पानी उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। दिखाई दे रहा है तुमको मट्टी के खिसकने का, पानी के अंदर आने का, शहरों के डूबने का। ये बाढ़ बहुत ही भयावह भयानक है। जो और ये होता कब है? जब तेज बारिश हो। तुमको यहाँ पर बारिश भी दिखाई दे रही होगी कि बारिश कितनी तेज है, प्लस वो पानी भी देखो कितना तेजी से पानी बह रहा है। वो पानी के आगे कोई ताकत नहीं टिक पाती, कोई ताकत। यहाँ भी देखो ये जो बाढ़ है मिट्टी बहा कर लेके जा रही है और अपने साथ पूरा वो जड़ों को भी उखाड़ लिया है। पेड़ों की जड़ जो भी रास्ते में उनको मिलता है वो सारा के सारा बह जाता है। इतनी ताकत होती है पानी में। It is considered as one of the most amazing videos of flood. जब बाढ़ आई थी तो किस तरह से सब कुछ बहाकर लेकर गई। और अगर वहां पर कुछ लोग हों, जैसा कि हमने अभी बिल्डिंग का भी देखा कि वो कारें बह रही हैं, गाड़ियां बहती जा रही हैं, कुछ भी एकदम खिलौनों की तरह सब कुछ बहता जाता है, तो इंसानों की तो क्या औकात है कि इंसान अपने आप को कैसे बचाएगा ऐसी बाढ़ से। यहाँ पर देखो ये कैसे ब्रिज के ऊपर से और वो शायद ब्रिज भी अभी नहीं बचेगा। कि किस तरह से वो बाढ़ पानी का बहाव काटता जा रहा है हर चीज को। पता ही नहीं चलता फिर वो सड़क है या गांव है या पहाड़ है, पता ही नहीं चलता, सब कुछ समा जाता है। यहाँ पर तुम देखोगे कि पानी चारों तरफ से किस तरह से जा रहा है। मॉनसून रेन्स दे पैरालाइज मुंबई, या हमारे यहाँ भी यही हाल होता है। पहला वीडियो मैंने तुम लोगों को दिखाया था, अब ये हमारे मुंबई का क्या हाल होता है। तो ये पहला वीडियो जो मैंने दिखाया था वो वसई विरार के लिए था, बट वो कवर करता है हमारे पूरे मुंबई को। क्या होता है बाढ़ से, क्यों हो आती है बाढ़? क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कर लिया है। वो न्यूज़ की एक क्लिपिंग थी जो मैंने तुम लोगों को दिखाई, ये शुरू से 2018 की क्लिपिंग थी वो, कि शुरू से किस तरह से क्या हो रहा। हमारा माउंटेनियस रीजन होने के कारण हमारे विरार में पानी भरता है। और अब बॉम्बे में क्या सिचुएशन है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ देखो, यहाँ पर तुम देखोगे स्टेशन में हमें रेलवे ट्रैक्स नहीं दिखाई दे रहे, उसके ऊपर पानी है। यहाँ तक कि ये जो आदमी साइकिल लेके जा रहा है वो घुटने के ऊपर उसके पानी आया हुआ है। कई लोग, उन लोगों का सोचो कि जो रोड पे रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, उनका क्या हाल होगा। अगर यहाँ से कोई गुजरा होगा तो सीधा ये ज़मीन का कटाव है, कट गई ज़मीन यहाँ पर। लोग मदद करने के लिए आते हैं। ये देखो घर का क्या हाल हो गया है। इस बार हमारा लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकले तो हमें इतनी पोजीशन पता नहीं चली है। हम्म? ये सारे वीडियोस मैंने तुम लोगों को क्यों दिखाए, क्या रीज़न था बताने का? हमारा जो आज का लेसन है वो इसी पर आधारित है, जहाँ चाह वहाँ रहा। हमने इस लेसन में जो अभी सिचुएशन देखी है वो सिचुएशन हमारी हर साल होती है। स्पेशली विवा कॉलेज के यहाँ पानी भर, और फिर तुम्हारी स्कूल बस तुमको लेने के लिए नहीं आती। इस साल तो तुम घर में ही बैठे हो तो तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ा कितनी बारिश हुई और कितनी नहीं, ये पता ही नहीं चला तुमको।
लेकिन जब स्कूल चालू रहता था लास्ट ईयर भी हमको कितने दिन की बारिश की छुट्टी मिली थी, तेज़ बारिश हुई, पानी भर गया, हमारी बसेस नहीं आई, हम घर में बैठे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया और फिर हमने वीडियोस देखे। अ, हमारे यहाँ भी मुंबई में हमने देखा कितना कमर तक पानी, विवा कॉलेज के यहाँ भी पानी। बारिश शुरू होते ही हमारी ये जल जमाव की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, वाटर लॉगिंग। और फिर क्यों होती है वाटर लॉगिंग, ये मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में दिखाया। वो सब रीजंस है, हम अभी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। येसम्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अभी जैसे प्रार्थना स्कूल में ज़्यादातर हम देखते हैं तो मैदान पर होती है, जब बारिश नहीं हो तो, और बारिश होगी तो कक्षा में होती है। हमारी तो हमेशा कक्षा में ही होती आती है। तुमको तो पता है कि हम अभी क्लास असेंबली ही लेते हैं, क्लास में ही हमारी असेंबली होती है। हम ग्राउंड पे असेंबली नहीं लेते, ग्राउंड पे हमारी मास ड्रिल होती है, हमारा योगा होता है। और जब बारिश हो तो हमारा योगा कहाँ होता है? वो होता है हॉल में, पता है ना तुमको। तो इस तरह से यसम्बा नाम का एक गांव था, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के कारण उनकी जो प्रार्थना सभा थी वो मैदान में न होकर कक्षा में हो रही थी। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या? अब उपस्थिति यानी अटेंडेंस। गुरुजी अटेंडेंस ले रहे थे, क्लास में तुम लोग जैसे ही आते हो वैसे तुम्हारी भी अटेंडेंस ली जाती है। तो अटेंडेंस जब ले रहे थे तो पता चला कि बहुत कम बच्चे आए हैं कक्षा में। कारण क्या हो सकता है, कारण क्या होगा? तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा आज इतने लोग कम क्यों हैं? वही नाला गुरुजी। कारण क्या था? गांव में एक नाला बह रहा था और वो नाला परेशानी का कारण था। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग किसी तरह तो नाला पार कर लेते, अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर देते थे। लेकिन खेतों में चले आते, वो नाला पार करके खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लगना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला में नहीं जा पाते। अगर वो पाठशाला के लिए आने के लिए रास्ता वो नाले से होकर आना है तो तुम्हारी हाइट तो उतनी नहीं रहेगी ना, तुम तो पूरे उसमें डूब जाओगे, तो तुम्हारा आना सेफ रहेगा? नहीं रहेगा। तो बच्चों की हाइट कम होने के कारण पानी ज़्यादा भर जाता था और जो कि क्वाइट रिस्की रहता है बच्चों के लिए, इसके लिए बच्चे पाठशाला नहीं आ पाते थे, क्योंकि पाठशाला एक तरफ थी और गांव दूसरी तरफ था और बीच में नाला बहता था। जब जब जोरों की बारिश होती उसी दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अभी कौन सा गीत वहां पर प्रचलित हुआ? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। यही गीत बच्चे गुनगुनाने लगे थे, क्योंकि यह हर साल की बात थी, हर साल। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। नेचुरली जब तुम स्कूल नहीं जाते हो, अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में भी तुमको परेशानी हो रही है। ऑनलाइन हम पढ़ा रहे तो कई बच्चे समझ नहीं पाते, पेरेंट्स कंप्लेन करने आते हैं कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन। लेकिन तुमको ये भी समझना चाहिए कि ये ऑनलाइन तुम्हारे लिए कितना फ़ायदे कारक है। तुम वो वीडियो तुम देखते हो, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार वो वीडियो देखो, 2-3 बार देखने पर हर एक्सप्लेनेशन तुमको। क्लास में तो जब मैं पढ़ाती थी मैं एक ही बार में पढ़ाऊंगी और फिर अपना लेसन खत्म हो गया। रिवीजन के टाइम पे अगर तुमको किसी को कोई डाउट रहा, हाँ ये बात थी कि जब हम लाइव क्लासेस लेते थे तो तुमको कुछ डाउट है तो तुम खड़े होकर पूछ सकते थे।
अब यहाँ पर तो वो बात नहीं है, तो तुम वो वीडियो बार बार देख लो जो तुमको नहीं समझ में आता, और इस तरह से तुम्हारा काम हो सकता है। अपना भी तो दिमाग यूज करना चाहिए ना पढ़ाई के टाइम पे, कि हमको पढ़ना कैसे। तो जब तुम पाठशाला में नहीं आते, तुमको पढ़ाई, तुम एब्सेंट रहते हो, तो तुमको कैसे समझ में आएगा। अब ये बेनिफिट है तुम्हारे लिए कि तुम स्कूल तो नहीं जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा मन चाहे, तुम ये इतने सिंसियर हो, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम 10 बजे जैसे ही मेरा वीडियो आता है तुम खोल के देख लेते हो, और फिर बाद में तुमको सब समझ में आ जाता है, तुमको जो बोला गया कार्य है वो तुमने पूरा कर लिया, और नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। तो इसका प्रभाव तुम्हारी पढ़ाई पर अच्छा पड़ेगा, ना कि बुरा पड़ेगा, जैसा मैंने अभी बताया है तुमको पढ़ने के लिए। वैसे अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में मार्क्स तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे क्या? नहीं, सब परेशान थे, पर क्या करते, हर कोई अपनी अपनी जगह पर परेशान था। क्या करता, मार्ग असंभव था, हर बार नाले में पानी भर ही जाता था, तो उसके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं था, तो मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। इसका मूल शब्द क्या होता है? संभव। हम्म? यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? अब भूत भूत में भी अगर मानते होगे तो फिर तुमको ऐसा लगेगा, अरे बरगद के पेड़ में भूत है तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? भूत देखा है? तुम लोगों ने देखा है भूत? किसी ने देखा है भूत कैसा होता है? हुँ? जब मस्ती करते हो ना, अपने आप को आईने में देख लिया करो, पता चल जाएगा। मम्मी कभी बोलती होगी तुमको, बोलती है कि नहीं? भूत लग रहे हो, गंदे होके आते हो तभी भूत लग रहे हो। आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, डराने के लिए भी भूत बन के जाते हो, लेकिन वो क्या वाकई में भूत होता है? ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है, ऐसी कोई चीज नहीं है। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। हमने किसी ने भूत देखा ही नहीं है तो फिर हम कैसे माने इस बात को? ऐसा कहकर जूही ने वो बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अब उज्ज्वला बोली, अभी तक टोटल उसकी कितनी एब्सेंटी हो चुकी थी? 14। किसके कारण? बरसात के कारण। बरसात के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी, नाले में पानी भर जाता था, और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में भी खलल पड़ रहा था। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। अब शुभम क्या बोला, मेरी टोटल प्रेजेंट ही 14 होगी। तो एब्सेंटी की बात करें, मेरी 14 प्रेजेंट ही होगी। होते हैं ना कई बच्चे ऐसे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, तो घर पे किसी न किसी बहाने से रुक जाते हैं, और फिर वो कुछ ऐसे बहाना बना के लीव नोट कुछ भी झूठी लिख के प्रेजेंट कर देते हैं। वो बोला कि मैं तो खाली 14 डेज प्रेजेंट ही रहा हूँ, एब्सेंट तो मेरी कितने हैं मुझे पता नहीं। और ये बात सुनकर सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष बोला कि हम हर बार इस तरह से ही बैठे रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं इसके आगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? तो तुषार क्या बोला, हम क्या कर सकते हैं? जब हमसे जो बड़े बड़े हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम अकेले बच्चे क्या कर पाएंगे? बोला कि तूने सच कहा। तुषार क्या बोला, तू सच बोला, हम बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजा बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी क्या आगे आई और बोली, हंसो मत अपने आप पे, अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम ही हैं, हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है, हर समस्या का समाधान है। टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन किसको ढूंढना पड़ेगा? हमको, क्योंकि समस्या किसे है? हमें है। जैसे अभी ये लॉकडाउन था, तो समस्या थी पढ़ाई की, हमने उसका समाधान ढूंढा, और हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग अच्छे से समझ सके। तो आज ये
समस्या का समाधान ढूंढो। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। हमारे पास बुद्धि है, जानवरों के पास नहीं है जितनी हमारे पास है। किसी और के पास, इस दुनिया में किसी और प्राणी के पास उतनी बुद्धि नहीं है जितनी हमारे पास है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। हम और समस्या हमारी होगी तो उसका समाधान भी हमें ही खोजना होगा। उसके लिए हमको विचार भी करना होगा। प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, हमारे जैसी बुद्धि किसी और के पास नहीं है। कोई भी जानवर ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके पास हमारे जैसी बुद्धि हो। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम किनारे पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मुझे नदी पार करनी है और सिर्फ सोचते बैठे रहोगे तो हो जाएगी क्या? नहीं, तुमको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना नदी पार करने की। मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, ये मूवी का एक रेफरेंस देना चाहूँगी कि वहाँ पर वो 2 बच्चे को, मतलब अगर मूवी आई अगर टीवी पर तो तुम देखना उसमें कि जब वो उसके बचपन की कहानी दिखा रहे हैं मिल्खा सिंह की, तो वो बचपन में अपने सारे कपड़े उतार कर वो लोग नदी पार करके स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के बाद वो लेट हो जाते थे तो टीचर उनको पनिश करते थे। तो ये यहाँ पर उसका रेफरेंस मैं इसके लिए देना चाहूँगी क्योंकि ये रिलेटेड है। बच्चे नदी पार करके, नाला पार करके जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो बच्चे जाते ही नहीं थे, लेकिन वो वैसे बच्चे थे कि वो जाते थे। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। अभी मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में एक चेन्नई का ब्रिज दिखाया जो कोलैप्स हो गया था बारिश की वजह से। तो उन लोगों ने बोला कि नदी पर हम पुल बनाएंगे और फिर उस पर से हम नाले में बिना किसी रुकावट के जा सकते, नाला पार करके, बारिश में भी। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है, तुमने भी देखे हैं। हमारे तो फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ विरार में भी है। तो बड़े बड़े पुल तुमने देखा होगा। हमारा फ्लाईओवर तो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए जाता है। आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से है। अंतरजाल यानी इंटरनेट से हमें जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। यानी गांव के नाले की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा ज़्यादा का हमको पुल बनाना पड़ेगा। पुल बनाने का विचार जंगल के आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। एकता, यूनिटी। संगठन, जब हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन जाता है, जैसा कि अभी हमारा ऑनलाइन चल रहा है। तो ये संगठन है। और श्रमदान, श्रमदान मेहनत। सबने इसका इम्पोर्टेंस समझा। सब आकर कोई भी काम अगर हम एक साथ मिलकर करते हैं तो वो फिर हमारे लिए बड़ा कठिनाई वाला काम नहीं रहता और वो असंभव भी नहीं होता है। वो सब मिलकर काम करने पर संभव हो जाता है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे।
पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत यानी रिपोर्ट राइटिंग, जो अभी तुम लोगों को शायद इंग्लिश में होगी, हम हिंदी में तो नहीं करते रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश में होगी रिपोर्ट राइटिंग, तो वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जो शिक्षा निरीक्षक रहते ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो आके देखते, उनको उन्होंने ये वृत्तांत भेजा। इस तरह से पुल का काम संभव हो पाया बच्चों के जरिए। तुम्हारे जरिए भी तुम अपनी तरीके से, मैंने इसके लिए क्वेश्चन भी तुमको दिया, तुम अपने आसपास की सफाई किस तरह से रखते हो, यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन था जो स्वमत का था कि तुमने क्या सफाई की। तुमने लिखा है कि तुमने अपने घर की सफाई, पूछा था मैंने, आसपास तुम्हारे बिल्डिंग के आसपास, या तुमने सोसाइटी में क्या किया। तो तुमने अपने पर्सनल उसमें डाल के रखा है, तुमको ये भी पता नहीं चलता है कि तुमको आंसर कैसे देना है। आगे हम जब रिवीजन लेंगे तो, और मैंने तुमको पहले भी बोला, जो भी तुम्हारे डाउट्स है तुम कमेंट्स में लिखो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात, हम शेड्यूल करके रखते हैं अपना लेसन, हमारा लेसन हमेशा शेड्यूल रहता है, तो जो हमारा दिन है उस दिन के हिसाब से ही वो ओपन होगा, उसके पहले तुम लोग टिक 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 करते रहोगे तो नहीं होने लगा। यू गॉट माई पॉइंट, थिंग्स आर क्लियर टू यू। रीडिंग ऑफ द लेसन इज मस्ट। अपने फैमिली मेम्बर्स के जरिए डिक्टेशन लो, उनको बोलो डिक्टेशन ले तुम्हारा और नोटबुक में लिख लो जैसा हम क्लासरूम में करते थे। और बस इसके बाद हमारी एक पोयम ही रहेगी, फिर हमारा लेसन, हमारा ये टर्म का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल कॉम्पोजिशंस, नोट्स, एवरीथिंग। प्लीज कंप्लीट योर वर्क। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। वीडियोस दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बात समझाना चाह रही थी वो विजुअलाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और लोकल एरिया का इसके लिए लिया है कि हमारे यहाँ परेशानी क्या है, जब तुम बड़े हो जाओ, अच्छे इंजीनियर, काबिल इंजीनियर बनो, तो कुछ हमारे इस वसई तालुका के लिए कर सकते। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।